I welcome you all in the name of Jesus. आप सभी का स्वागत है मसीह यीशु के नाम में. जितने भी लोग यहाँ पर ऑफलाइन आए हैं और आप ऑनलाइन हैं, आपका स्वागत है. I want to say that God loves you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं और वो हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं. The word of God says, enter his gates with thanksgiving in our heart. How many of us are thankful that we have this privilege of coming in the house of God? हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाते हैं. हमें जो है दुनिया की चीजों में कार्य करने की जरूरत नहीं है, पर हमें अपने हृदय को परमेश्वर के सामने लाना है. और we have a God who doesn't see the outside, we have a God who sees the inside. Hallelujah. यदि हमारा हृदय परमेश्वर के सामने खड़ा है, मैं निश्चय आपसे कहता हूं परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे. Amen. Let us close our eyes and enter his gates. Let us close our eyes and enter his presence this moment. Let us pray. God, Lord Jesus, we invite your presence this moment, God. We surrender ourselves in your hands. उनसे कहिए परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ आज सुबह के वक्त. मेरी प्रार्थना है मेरे जीवन को शुद्ध धो दीजिएगा अपने उपस्थिति के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा. परमेश्वर मैं जिस तौर तरीके से आया हूँ परमेश्वर, उस तरीके में वापस नहीं लौटना चाहता हूँ प्रभु. मैं बदल कर जाना चाहता हूँ परमेश्वर. मैं उस बदलाव को मांगता हूँ परमेश्वर. God, we ask for that change, oh Lord Jesus. We ask for the change that only comes from the heaven, God. This is the divine change that comes, God. This is what we ask in our life, God. Ask God that God you would have mercy on our life. हमारे ऊपर दया कीजिए परमेश्वर. हमारी सोचों को बदल दीजिए, हमारे व्यवहार को बदल दीजिए परमेश्वर. हमारे आत्मिक चलन को बदल दीजिए परमेश्वर. हम एक रिश्ते को चाहते हैं आपके साथ. We want to walk with you, God, which is a close knit walk, God. We want to walk side by side with you, God. आए प्रार्थना करें. उनसे कहिए परमेश्वर हम आपको मांगते हैं आज सुबह के वक्त. हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं आज सुबह के वक्त. पिता आपके बिना नहीं हो सकता प्रभु. We cannot do it without you, Lord Jesus. Show your power, God. Have mercy on our lives. We thank you. Show your power, O Lord, our God. Show your power, O Lord. Come on, lift your hands and say, show your power, O Lord, our God. Show your power, O Lord, our God. Sing it again. Show your power in my life, God. Oh Lord, our God. Show your power, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Come on, let us clap our hands. Let us lift our hands. Let us lift our hearts and praise God with all that we have this morning. आए अपने आप को तैयार करें. He is the Lord and He reigns on high. He is the Lord. He spoke into the darkness, creating the light. Come on, once again, He is the Lord. He is the Lord and He reigns. You sing, He is the Lord. He spoke into the darkness, creating the light. He is the Lord. Who is like unto Him? Who is like unto Him, never ending in days. He is the Lord, and He comes in power when we call on His name. He is the Lord. Show your power, oh Lord, our God. Show your power. We ask of you, Jesus. We ask for your presence, God. Hey, show your power, oh Lord, our God. Show your power, oh Lord, our God. Oh Lord,
hands, अपने तालियों को नहीं रुकाएंगे, स्तुति करते रहेंगे. Come on, listen to this. Your gospel, O Lord, is the hope for our nation. You are the Lord. It's the power of God for our salvation. You. Once again, your gospel, O Lord, is the hope for our nation. You are the Lord. It's the power of God for our salvation. You. Come on, lift your hands and say, show your power, show your power, oh Lord, our God. Show your power, oh Lord, our God. Show your power, show your power, oh Lord, our God. Show your power. Keep clapping for the name of Jesus. We thank you, God. स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु. Come on, अपने मुख से कहिए, स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु. Come on, एक आवाज में, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए. तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे पिता. तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए. स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु. स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु. तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है हमारे लिए. तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे जीवन की शुद्धि ली है प्रभु, और क्योंकि आपने हमारे जीवन की शुद्धि ली है, हमारे जीवन में सब कुछ भला चंगा है परमेश्वर. Because you remember our lives, God. Because you are faithful, God. Because you are God and you never turn away from every word that you've spoken. Our lives are a testimony of your goodness. हमारा जीवन आपके भलाई का गवाही है परमेश्वर. हम आपकी आराधना करते हैं आज सुबह के वक्त प्रभु. जिस प्रकार परमेश्वर आपने मूसा के साथ अपने सामर्थ को दर्शाया, जिस प्रकार आपने आरून के साथ अपने सामर्थ को दर्शाया, जिस प्रकार आपने आपके जनों के साथ अपने सामर्थ को दर्शाया, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमारे जीवन में आप अपने सामर्थ को दर्शाएं. Show us your glory, God. हमारे जीवन को आप अपने महिमा से ढाक लीजिए परमेश्वर. We want to be hidden in your presence. यदि आप अपने जीवन को उनकी उपस्थिति में पाना चाहते हैं, उनसे बातें कीजिए, उनसे कहिए परमेश्वर, hide me in your presence, God. मुझे अपनी उपस्थिति में छुपा ले परमेश्वर. मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर. तेरी आराधना करता हूं परमेश्वर, सच्चाई के साथ, सही आत्मा के साथ. जिस आराधक को तू खोजता है परमेश्वर, उसके समान मैं आपकी आराधना करता हूं. We thank you, God.
कैसे करूं मैं तेरी महिमा, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको, कम ऑन हाथों को उठा कर कहिएगा, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, for everything that you've done in our lives, God. धन्यवाद करूं, मैं धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। कम ऑन एक और बार, किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। Let's just lift up our voices this morning. आइए सवेरे के वक्त हम अपने आवाज को उठाएं This morning, let's just open our hearts to Him. और हमारे हृदयों को उनके सामने हम खोल दें Let's tell Him that, Lord, we thank you, God. और परमेश्वर से कहे प्रभु धन्यवाद। Let's lift up our voices and worship Him this morning. आइए अपने आवाज को उठाते हुए उनकी आराधना करें Oh, yes, she's tell Him that, Lord, I love you. और परमेश्वर से कहे मैं आपसे प्रेम करता I हूँ। adore you this morning, O Lord. प्रभु मैं आपको सराहता हूँ There प्रभु। is no one like you, Lord. आपके समान कोई नहीं है प्रभु। Oh, yes, Jesus, I cannot compare with anybody, O Lord Jesus. प्रभु आपकी तुलना मैं किसी और से नहीं कर सकता। You are so प्रभु। marvelous. आप कितने अद्भुत You हैं are so परमेश्वर। beautiful. You are so wonderful, O Lord. आप सुंदर हैं, आप अद्भुत हैं परमेश्वर। Oh, come on, lift up your voices this morning. आइए अपनी आवाज को उठाएं। And इस wherever समय में। you are, open your hearts this morning. और जहाँ कहीं भी आप हैं अपनी आवाज को आप उठाएं। Lift up your hands this morning and say that, God, here I am. और अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु कहे कि प्रभु मैं यहाँ पर Here I am, O Lord, worshiping you this morning, O Lord. प्रभु मैं यहाँ पर हूँ आपकी This आराधना morning, में तू fill me, O भी Lord Jesus. प्रभु इस सवेरे के वक्त तू मुझे भर दे। Touch me, O Lord. प्रभु आप मुझे छू लीजिए। Speak to me, O Lord, this morning. मुझसे बातें कीजिएगा परमेश्वर। Oh,
Oh, परमेश्वर His Spirit is in the midst of us. और हमारे बीच में उनकी आत्मा मंडरा रही है Oh, He is moving. और वो यहाँ पर मंडरा रहे हैं Oh, yes, Jesus. Oh, He says that I am with you. और प्रभु कहते हैं वो आपके साथ है I will never leave you, never forsake you. और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं कभी त्यागूंगा नहीं Oh, He says that I will lead you. और वो कहते हैं मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा In the deep valleys, He will lead us. और वो कहते हैं कि तराई में तुम्हारी अगुवाई मैं करूंगा Oh, come on, can we lift up our voices? आइए अपनी आवाज को आप उठाएं Lift up your voices this morning. इस सवेरे के वक्त अपनी आवाज को You may be उठाएं somebody who would be feeling that. और आप ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसे लगता होगा You know that you are in a situation which is frightening. और आप ऐसे परिस्थिति में हैं जो डरावनी सी है But God is saying that fear not, I am with you. लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं डर नहीं लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ Oh, yes, Jesus. Come on, lift up your voices this morning. आइए अपनी आवाज को उठाएं As you are lifting up your voices, He is strengthening you. और जैसे आप आपकी आवाज को उठाते हैं वो आपको जो है बल देते हैं As you are opening your hearts, He is giving that confidence in you. और जैसे अपने हृदय को खोलते हैं वो साहस आपको देता है Come on, lift up your voices this आइए morning. अपनी आवाज को उठाएं Oh, yes, Jesus. आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं धन्यवाद करूं धन्यवाद करूं Father, we give you all the glory and honor, Lord Jesus. सारा सराधन हम आपको देते हैं We thank you, Lord Master, प्रभु हम आपको धन्यवाद for all the देते हैं wondrous work which you have done, O Lord जो Jesus. अद्भुत कार्य आपने किए हैं And we know and we परमेश्वर believe that this wondrous work will never stop, O Lord. और हम जानते हैं कि ये अद्भुत कार्य प्रभु आपके रुकेंगे नहीं But we as your people, O Lord Jesus, लेकिन हम आपके बच्चे होने would के नाते experience your mighty hand on us. और आपका पिता पुष्पल हाथ हमारे ऊपर अनुभव We would करेंगे experience those wondrous work and miracles in our life, O Lord. आपके वो आश्चर्य काम अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में अनुभव That करेंगे supernatural thing would be a natural for us, O Lord वो Master. अलौकिक बातें हमारे लिए परमेश्वर सामान्य सी Oh, होगी we give you प्रभु all the glory and honor, O Lord. प्रभु हम आपको सरादर देते हैं In Jesus' name we worship. यीशु मसीह के नाम से हमने आराधना की Amen. Hallelujah. Please be seated. आप सभी लोग बैठ सकते हैं You know, God is a good God. आप प्रभु भले हैं You know, He speaks to us. और परमेश्वर हमसे बातें And करते this हैं morning, if you're somebody who's been struggling in fear, और अगर आप ऐसे हैं जो डर से गए हैं या डर से जूझ रहे हैं you know, God is saying that He has not given us the spirit of fear. और देखिए परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने हमें डर की भय की आत्मा नहीं दी His है word says that He will never leave you, never forsake you. वचन कहता है वो हमें छोड़ेंगे नहीं त्यागेंगे नहीं He says that I am with you, fear not. और वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ है आप डरो नहीं Hallelujah. The word of God says that the struggle which you are into, और देखिए वचन कहता है जो जूझना जिस परिस्थिति में आपका है you know, God is somebody who will help you to overcome out of that struggle in the name of Jesus. और परमेश्वर ऐसे है जो उस परिस्थिति से आपको निकाल देंगे You know, this morning you and me need to open our spiritual ears and spiritual eyes. और देखिए जरूरी है इस सवेरे के वक्त हमारे आत्मिक आंखें आत्मिक कानों को हम खोल दें And the things which would be surrounding us, the things which we see from our natural eyes may frighten us. और देखिए जो सामान्य तौर पर हमारे नैसर्गिक आंखों से हम देखते हैं जो परिस्थितियों से हम घेरे हैं वो हमें डरा सकती But है when we open our spiritual eyes, लेकिन जब हम आत्मिक आंखों से या फिर उनको खोल देते you हैं know, we will see ourselves as winner. We will see ourselves as an overcomer. और देखिए तब हम जो है अपने आप को एक विजयी एक जयवंत से बढ़कर उस तरह से हम देखेंगे You know, 2 Corinthians chapter 5 verse 7 says that walk by
faith and not by sight. और देखिए दूसरा कोरिन्थियों का किताब कहता है कि आपको जो है विश्वास की चलन चलना है, ना कि जो दिखता है उसके Hallelujah. अनुसार। This morning, if you're walking by faith, और अगर इस सवेरे के वक्त आप विश्वास से चलते हैं, I'm telling you, you would definitely experience being an overcomer in the name of Jesus. और मैं आपसे कह दूं, आप निश्चय ही जो है एक जयवंत से बढ़कर वाला अनुभव को आप देखेंगे। And God has been faithful to us. और परमेश्वर विश्वास योग्य बने He has रहे हैं। blessed us with a commanding theme this month. और देखिए इस महीने में उन्होंने हमें आज्ञा देते हुए एक शीर्षक को दिया है। And the theme is move on. और शीर्षक ये है कि आगे बढ़ो। And Isaiah chapter 43 verse 18 and 19 says, और यशायाह का किताब 43 अध्याय 18 और 19 कहता है, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। Hallelujah. This month God is speaking to us that we need to move on. और देखिए इस महीने परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना We do है। not need to remain where we are, but we need to arise. We need to get up and we need to go forward. We need to move on. और देखिए जहाँ पर हम हैं वहाँ पर बने नहीं रहना है, हमें उठ खड़े होना है, आगे की ओर आगे बढ़ना है। And last week we saw that when we are ready to move on, और देखिए पिछले सप्ताह हमने देखा कि जब हम तैयार होते हैं आगे बढ़ने के God लिए, energizes और us. परमेश्वर हमें जो है बल देते That हैं। energy which is needed in us, that strength which is needed in us, it is provided by God. और देखिए जो बल हमें चाहिए, जो आगे बढ़ने की क्षमता हमें चाहिए, वो प्रभु देता है। God educates us and He elevates us. और परमेश्वर ही है जो हमें प्रशिक्षित करता है, वही है जो हमें प्रगति देता If you're है। somebody who desire to get promoted, if you're somebody who's desire to be elevated, you and me need to get up, we need to move on. और देखिए आप ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी प्रगति होना है, आपको यश पाना है, तो आपको जरूरी है कि आप फुट खड़े हो और आगे की ओर बढ़े। And this morning, once again, God wants to speak to us with this theme, move और on. इस सवेरे के वक्त फिर एक बार परमेश्वर जो है आगे बढ़ना, ये शीर्षक के द्वारा बातें करना And चाहता move है। on is an action. और देखिए आगे बढ़ना जो है एक क्रिया है। It's not just words, but it's an action statement which you and me need to perform. और देखिए ये मात्र जो है एक बात नहीं है, शब्द नहीं है, लेकिन एक कार्य है जिसको कार्यरित करना होता And है। when we do that action, और जब हम ये कार्यों को करते हैं, it defines and displays our faith and dependence on God. और देखिए जब हम जो है कार्यरित करते हैं, तो हम जो है परमेश्वर पर हमारी निर्भरता को दिखाते हैं। We say that we are not going to remain where we are. We are not going to be in that struggling area, but I am going to get up. I am going to move on because God is with me. I am believing in God. I am depending on God because I know that my future is in God's hand. आमीन। जब आप जो है उठ खड़े होते हैं, आप इस बात को बोलते हैं, इस बात की घोषणा आप अपने आप से करते हैं कि जहां पर जो परिस्थिति में जो चीजों से मैं पड़ा हुआ हूँ, घेरा हुआ हूँ, उसमें नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। जो परमेश्वर है उसकी ओर मैं बढ़ूंगा। If you're somebody who wants to reach your destination, if you're somebody who is looking forward to pursue your goal, और देखिए आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जो है ध्येय की तरह उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है, you cannot just look at the obstacle and stand there. और देखिए आप ऐसे व्यक्ति फिर बन नहीं सकते कि ऐसे अड़चनों को देखें और वहां पर ही पड़े रहे You या फिर need to देखते move रहे। on to overcome those obstacles. देखिए जरूरी है आपको आगे बढ़ना है ताकि उस अड़चनों या बाधाओं पर आप लांग सके। And when you move on, that is the time when you will start overcoming everything which is coming between your goal, your destination. और तब जो है जो भी आपके सामने बाधाएं आते हैं, जब आप लांघोगे तब आप उस पर जो है जयवंत होंगे। This morning we are going to look at the life of Peter. और आज जो है हम जो है पतरस के जीवन से सीखने वाले हैं। Peter experienced something new. और देखिए पतरस जो है कुछ नया उसने अनुभव किया। When Jesus was in his boat, और देखिए यीशु जब उसके नाव में थे, Luke chapter 5 speaks about how Jesus
came and Jesus went into his boat. और देखिए लूका का किताब 5वां अध्याय कहता है या वर्णन करता है कि जब यीशु जो है पतरस के नाव में चढ़े He saw something impossible happen there. और वहां पर वो जो पतरस है असंभव को देखता है संभव होते हुए Something which was not possible became possible. और जो असंभव सा था वो संभव हो गया The weeping and sorrows, transformed into gladness and rejoicing. और जो दुख और दर्द और कराना था वो जो है आनंद में उल्लास में बदल गया Verse 9, Isaiah chapter 43 verse 19 focuses on the rewards and the results of you and me moving on. और देखिए यशायाह का किताब 43 अध्याय 19वां वाक्य जब हम आगे बढ़ते हैं जो बख्शीश परमेश्वर ने रखा है उसके बारे में कहता And the है verse says that you will see new things. God says that I will do new things. और देखिए वचन कहता है कि तुम नई बातों को देखोगे क्योंकि मैं नई बातों को God करने says पर that I will make a way in the wilderness, streams in the desert. और देखिए वचन कहता है कि जंगल में वो मार्ग को बनाएगा निर्जल देश में वो नदियां को बहाएगा And we all want to experience that new encounter with God. We all want to experience that ways which looks impossible. और देखिए हम सभी लोग चाहते हैं कि उस नई बातों को अनुभव करें वो असंभव सी बातें हमारे जीवन में संभव हो जाए But this morning God wants us to look at the commands which God is going to give us. He says that move on. और देखिए लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम जो है परमेश्वर जो आज्ञा देता है उन 3 बातों को देखें जिसके वजह से हमें आगे बढ़ना है Do not remember your past. और देखिए अपने भूतकाल को याद न Do रखें not dwell in your past. अपने भूतकाल में बने न रहे When you do that, और जब आप ऐसे करते हैं that's where you will experience that goodness of God in your life. और तभी आप जो है परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में अनुभव करेंगे Peter also experienced the goodness of God in his life. और देखिए पतरस भी जो है परमेश्वर की उस भलाई को अपने जीवन में अनुभव करता But है Peter had to move on. लेकिन पतरस को जरूरी था कि वो आगे बढ़े To experience that goodness, to experience that fruitfulness of God, he had to leave something behind and he need to move on. और देखिए कुछ परमेश्वर की उस नई बातों को अनुभव करने के लिए नया पाने के लिए जरूरी था कि उन बातों को पीछे छोड़ जाए और वो वहां से आगे बढ़े Luke chapter 5 verse 4 says, और लूका का किताब Luke chapter 5 verse 4. लूका का किताब 5वां अध्याय 4था When वाक्य Jesus was in the boat of Peter, और यीशु मसीह जब पतरस के नाव में थे the verse says, when he finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल Jesus saw Simon and his friends. और देखिए यहाँ पर यीशु जो है पतरस या शिमोन और उसके दोस्तों को देखता है While he was speaking, he saw them that they were cleaning their nets. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर देख रहे थे कि कैसे ये मछुआरे जो है अपने जालों को साफ कर रहे थे Face down, disheartened. और उनका जो है चेहरा मुरझाया सा हताश हुए They हुए have not caught anything in the night. और कुछ भी जो है हाथ में उनको They मिला were नहीं है discouraged. और वे जो है हताश थे And in that situation, Jesus is asking them to move on. और देखिए इस अवस्था में परमेश्वर यीशु मसीह जो है उनसे कहते हैं आगे बढ़ो He is asking them that come, let's go out in the deep waters. और यहाँ पर यीशु उनसे कहते हैं आओ जो है गहरे जल की ओर चले It's not easy. और देखिए ये आसान नहीं है You toil for the entire night. और आप जो है रात भर जो है परिश्रम You do करें not catch anything. और आपके पास कुछ भी नहीं है You are discouraged, you are disheartened, you just want to go home and take rest. और आप निराश है आप हताश है आप बस घर पे जाना चाहते हैं और आराम करना चाहते In हैं that situation, God is saying, God is saying, arise and let's go and let's put out in the deep water. और देखिए यहाँ पर यीशु जो है यहाँ पर कहते हैं ऐसी अवस्था में कि नहीं चलो और क्या है गहरे जल की ओर आगे बढ़ेंगे It's something which is difficult and challenging. और देखिए ऐसी बातें जो बहुत ही जो है चुनौती भरी है Moving on, move on is not something which is very easy. और देखिए आगे बढ़ना जो है वो आसान नहीं है It is challenging and a very difficult और task. देखिए ये बहुत ही कठिन है बहुत ही
चुनौती से भरा हुआ है। You know, if you and me need to move on, और अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम आगे we बढ़े, need to keep something aside. और जरूरी है हम चीजों को, चंद बातों को पीछे या बाजू में रख And दें। when we keep that some things aside, you know, it will help us to move on. और देखिए तब जाकर जो है हमें आसानी होगी कि हम आगे बढ़े। You know, this morning, let's look at three things which Peter kept aside. और देखिए इस सवेरे के वक्त हम तीन बातों को देखेंगे जो पतरस ने साइड में रख दिया, बाजू में रख दिया, You know, which helped him to obey and move on. और जिसके कारण जो है उसको होने दिया कि वो प्रभु की आज्ञा का पालन कर सके। You know, when Jesus told him to move on, और देखिए जब यीशु ने उससे कहा कि तू आगे बढ़, you know, Peter replies in verse 5. और देखिए 5वें वाक्य में शिमोन इस तरह से, पतरस शिमोन जो है इस तरह से कहता है, Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say, I will let down the nets. शमौन ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। You know, Peter and his friends were discouraged. They were dismayed because of what has happened in the night. They have not caught anything. और देखिए पतरस और उसके दोस्त जो है वो हताश थे, निराश थे, क्योंकि रात भर उन्होंने मेहनत की लेकिन कुछ हाथ में नहीं They were आया tired. और वे थक से गए थे। You know, but when Jesus asked them to let's go, let's put on your nets in the deep water. लेकिन जब यीशु ने उनसे कहा आओ चलते हैं और गहराई में जाल को डालते You हैं, know, this is what Simon replies. और देखिए यहाँ पर पतरस जो है इस तरह से कहता है। You know, how many times we reply in the same manner. और कितने बार हम भी जो है प्रभु को इसी तरह से उत्तर देते You हैं। know, Peter says that, Lord, we have, you know, toiled entire night and caught nothing. और पतरस यहाँ पर कहता है हमने पूरा रात जो है मेहनत किया है और हाथ में कुछ नहीं आया You है। know, the first thing which you and me need to keep aside is our excuses. और देखिए पहली बात अगर हमें कुछ अलग करना है, हमसे दूर रखना है, वो है हमारे excuses। If you and me need to move on, और अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, let's keep aside every excuses which is there. और सारा जो हमारे बहाना जो है उसको अलग कर दे। All the reasons which we have to not to move on, not to push forward, let's keep it aside. और जो भी सोच विचार है, जो भी हमारे बहाने हैं, उसको हम साइड में कर दे। When we will keep that aside, you know, that's where we will start moving on. और देखिए जब हम जो है उसे साइड में रखेंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। You know, yes, Peter and his friends were toiled entire night. They were tired. और देखिए हाँ ये सही बात है, सच बात है, पतरस और उसके मित्र जो है पूरी रात जो है मेहनत कर रहे थे, But that was his past. लेकिन वो जो है उसका भूतकाल था। That was the last night which they were toiled. और वो जो है रात्रि का समय था, रात की बात थी। But now God is asking, now Jesus is asking, let's go out in the deep waters. देखिए लेकिन यहाँ पर यीशु जो है उसे कहते हैं गहरे जल में हम जाए। You know, this morning you and me to understand this. और देखिए आपको और मुझे भी यही बात को समझना है। You know, our past experiences, our excuses can become a stumbling block for us. और हमारे जो भूतकाल के जो भी हमारे अनुभव है, हमारे बहानेबाजी है, वो सब जो है एक अड़चन पड़ You सकते know, this हैं। morning we need to forget everything which has happened. We do not need to bring those things as an excuse in front of God. और देखिए जो हो गया उसको छोड़ दे, उसको जो है परमेश्वर के सामने एक बहाने के तौर पर हम ना लाए। You know, God brings an opportunity in front of us. और देखिए परमेश्वर जो है हमारे सामने मौकों को लाते हैं। But many a time we stop ourselves by giving these excuses. लेकिन बहुत बार हम जो है जो प्रभु चाहता है उसको नहीं ले पाते, क्योंकि ये बहाने हम रखते हैं। You know, Peter brought that excuse that day. और देखिए उस दिन जो है इस शिमोन पतरस ने वहां पे उस बहाने को लाया। But then he quickly, you know, kept it aside and said that if you are saying that's why I'm going and putting my nets down. लेकिन जल्दी से उसने जो है उस बहाने को साइड में रख दिया और कहा प्रभु क्योंकि तू कह रहा है मैं चलूंगा You know, आगे। this morning, what are the excuses which you are making? इस सवेरे के वक्त आप और मैं क्या बहानों को परमेश्वर के सामने I लाते know हैं। somebody say that I am too old to start something new. और देखिए हो सकता है आप कहते हैं मैं बहुत ही मेरी आयु जो है बहुत हुई है कि मैं नया कुछ कर नहीं सकता। You know, what was the age when Noah started building an ark? और देखिए नूह
जो था उसकी आयु क्या थी जब उसने उस नाव को उस जहाज You know, he को was around बना 500 लिया? years that time. वो 500 साल का था। You know, is he more younger than you? क्या वो आपसे जवान है? You know, he's more older than you, but still he moved on. वो आपसे ज्यादा आयु का था, He did लेकिन not वो brought आगे that बढ़ा। excuse in front of God. उसने उस बहाने को प्रभु के सामने नहीं लाया। You know, somebody say that you are not talented. और आप हो सकते हैं, आप कहते हैं मैं ज्यादा जो है गुणवान नहीं This हूँ। morning I'm telling you, God is not looking at your talent, but God is looking at your willingness. प्रभु आपसे कहते हैं, प्रभु आपके गुणवान को आपके नहीं देखता है, लेकिन आपके इच्छुकपन को देखता If you're है। somebody who's willing to move on, अगर आप ऐसे हैं जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, God will help you, God will lead you, God will elevate you. प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपको उठ खड़ा करेंगे, आपकी प्रगति होगी। And the reason why people do not experience the fruitfulness and goodness of God is just because they bring these lame excuses. और देखिए, अगर परमेश्वर के लोगों का प्रगति नहीं होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, उस आशीषों को नहीं पाते, क्योंकि वो इस बहानों को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। You know, Jesus asked Peter to just forget what happened in the night. और देखिए, यीशु ने बस पतरस से कहा कि तू भूल जा जो रात के समय में हो This गया। morning, God is asking you and me, let's forget what has happened in the night. It's a new day, it's a new morning. You know, God is going to lead us, God is going to bless us, God is going to elevate us in the name of और Jesus. देखिए, इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे कहते हैं, जो रात को हुआ, जो कल हुआ, उसे भूल जाइए। आज का दिन जो है वो नया है, आपका दिन है, आपका यश पाने का, जयवंत में You know, बढ़ने का। Psalms chapter 30 verse 5 says, weeping may stay in the night, rejoicing comes in the morning. और देखिए, भजन संहिता का किताब 30वां अध्याय 5वां वचन कहता है कि रोना जो है हो सकता है वो रात का है, लेकिन दिन में जो है आनंद का समय आता है। Hallelujah. You may be weeping in the night, but I'm telling you, it's a new day, it's a new morning. Rejoicing is your portion in the name of Jesus. और आपसे मैं कह दूं, हो सकता है रात को आप रोए हुए कराए हैं, लेकिन आज नया दिन है और आज आपका उल्लास करने का दिन है। This morning, let's not the weeping and your past experiences become an excuse. और आज के दिन जो है आपका रोना, आपका कराना या जो भी आपके भूतकाल के अनुभव थे, वो एक बहाना न बन जाए आपको आगे बढ़ने Let's के move लिए। on as Peter moved on. हम आगे बढ़े जैसे पतरस आगे बढ़ गया। The first thing is that we need to keep aside our excuses. और पहली बात जो है, हमें बाजू में रखना है हमारे बहाने बाजी को। And a second thing which we need to keep aside. और दूसरी बात जो हमें जो है अलग रखना है। And Peter was an experienced fisherman. और देखिए, ये जो पतरस था वो जो है अनुभवी मछुआरा And he था। was somebody who knew the sea. और ये ऐसा व्यक्ति था जिसको समुद्र के बारे में मालूमात He थी। knew the tides. और उसको पता था उस बहाव को। He knew when he has to go and catch the fish. और उसे पता था किस समय में जो है उसे मछलियां पकड़ना You know, है। he was somebody who was expert, who had that expertise in catching the fish. और देखिए, ये ऐसा व्यक्ति था जो अनुभवी था मच्छी पकड़ने के लिए। Day in and day out, his work was that only. और दिन रात जो है यही काम था उसका। Going out in the sea, catching the fish, because that was his daily living. और देखिए, जाना समुद्र में मच्छियों को पकड़ना, यही उसका जो है रोजमर्रा की जिंदगी थी। And when Jesus asked Peter to go out and launch himself in the deep water, और देखिए, जब यीशु से कहते हैं जा गहरे जल में और पानी में जाल फेंक, you know, the second thing which could have become a stumbling block और दूसरी बात जो हो सकता था कि एक अड़चन के तौर पर, is his expertise. और उसका अनुभव। You know, thought would have ran in his mind. और देखिए, उसके मन में, उसके जहन में जो है इस विचार भागे Jesus होंगे is not a fisherman. कि यीशु तो है, वो मछुआरा नहीं He है। is a carpenter's son. What does he know about catching fish? और वो तो जो है एक सुतार का बेटा है, उसको क्या पता है कि मच्छियां कैसे पकड़ती है, You know, as कैसे a पकड़ते professional, हैं। Peter knew the best time, you know, when he has to go out and catch the fish. और देखिए, एक व्यवसायी होने के नाते उससे पता था एक मछुआरा किस समय पे मच्छी पकड़ सकता है। You know, he was aware of the Sea of Galilee. और देखिए, वो गलीली का जो समुंदर था, उसके बारे में उसको मालूमात He थी। knew that when he will go in the deep waters, he will not catch anything. और उसको पता था जब उस गहरे जल में वो जाएगा कुछ भी नहीं मिलेगा। You know, when he go in the shallow water, he will be able to catch something, but in the deep waters, he will not able to catch anything. और हो सकता है अगर तो थोड़ा बहुत जहाँ पर पानी है वहां पर जाए
शायद कुछ मिल सकता है, लेकिन गहरे जल में कुछ नहीं मिल If सकता। that day, if he would have brought his expertise in midst of this conversation, और देखिए इस बातचीत में यीशु के साथ अगर वो अपनी अनुभव को लेकर आता, he wouldn't be able to move on. और देखिए वहां पर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। It's very hard for us if we bring our expertise in front of God. और देखिए बहुत ही कठिन हो जाता है जब हम प्रभु के सामने हमारे जो है अनुभवों को लाते हैं, In something which we are very good. और हो सकता है कुछ बातों में हम बहुत अच्छे हैं, We are expertise in some things. और चंद चीजों में हम जो है बहुत ही अनुभवी And हैं, when God speaks to और us, जब प्रभु हमसे बातें करते it हैं, becomes very difficult to trust God at और times. फिर जो है उस समय में प्रभु पर भरोसा रखना हमें बहुत ही कठिन हो जाता है। This morning you and me need to understand that God is a God of uniqueness. और देखिए इस सवेरे के वक्त आपको मुझे ये याद रखना है कि हमारे परमेश्वर जो है सारे विचारों के परे सोचते हैं। If we want to experience that uniqueness in our life, और अगर हम चाहते हैं कि हम जो है उस परमेश्वर की सोच को सोचे, we need to get rid of this stumbling block called as our expertise. और जरूरी है हम जो है इस अड़चन जो हमारे अनुभव की भांति है उसको अलग रख दें। When God says that move on, जब परमेश्वर आपसे कहते हैं आगे बढ़ो, it is imperative that we need to keep aside our expertise and just follow God what He's saying. और देखिए ये फिर जरूरी हो जाता है कि जो हमें मालूमात है या अनुभव जिसमें है उसे बाजू में रखकर प्रभु जो कहते हैं उसको हम करें। It is very important that we unlearn ourselves. और देखिए जरूरी है कि हम जो है जो हमने सीखा है उसको अनसीखा करें। If you and me want to experience that godly encounters, और देखिए आप और मैं अगर चाहते हैं वो दैविक जो है मुखभेड़ को हम करें, that godly experience, if you and me want to experience, अगर परमेश्वर जो चाहते हैं उस अनुभव को हम करना चाहते you हैं, and me need to unlearn all the worldly patterns. और जरूरी है सारे दुनिया के तौर तरीके उस अनुभव को हम छोड़ दें या हम जो है उन्हें छोड़ दें। And when we keep aside all the worldly patterns, that time we would experience the hand of God in our lives. और देखिए जब वो दुनिया के तौर तरीकों को हम साइड में रखेंगे तब हम जो है परमेश्वर जो चाहता है उन बातों को हम करने पाएंगे। The word of God says that He makes a way in the wilderness. और देखिए वचन कहता है कि जहाँ पर जंगल है, रेगिस्तान है, वहाँ पर वो रास्तों को God is बनाएगा। capable of making streams in the desert. और देखिए निर्जल प्रदेश में वहाँ पर वो नदियों को बहाने में सक्षम है। He can just make a wall of Jericho fall with a shout. और देखिए यरीको की दीवार को बस एक जोर से जो ललकार दी थी उससे ही गिराने में सक्षम थे। He can part the Red Sea into two. और देखिए लाल समुंदर को उन्होंने दो भाग किया। Are all these things worldly patterns? क्या ये जो है दुनिया के तौर तरीके हैं? If you go and stand and shout on a wall, और देखिए आप जो है अगर दीवार के सामने जाकर खड़े हो जाए will it fall? और आप अगर ललकार को लगाए क्या वो गिरेगा If क्या? somebody sees this, they will say that this person has gone crazy. और अगर कोई आपको देखेगा ऐसे करते हुए तो कहेगा इसका दिमाग घूम गया है। But the people of Israel did that. लेकिन इजराइल के लोगों ने ऐसा किया। And God in His uniqueness, God in His newness, He made that wall of Jericho fall down. और जो हमारे परमेश्वर जो नएपन के हैं उन्होंने उस यरीको की दीवार को गिरा दिया। This morning, if you and me are depending on our expertise, और अगर आप और मैं ऐसे लोग हैं आज सवेरे के वक्त अगर अपने अनुभव पर हम जो है निर्भर हैं, I'm telling you, it would be very difficult for us to move on and experience the impossibles in our lives. तो फिर आपसे कह दूं कि हमें आगे बढ़ने में बहुत कठिन है, बहुत ही समस्या है। Because our mind is tuned to say that this is not possible. क्योंकि हमारा जो मन है, हमारे ज़हन जो है इस बात से आती है कि ये नहीं हो सकता। But when we open our spiritual eyes and spiritual heart, spiritual ears, we would see that things become possible in the name of और Jesus. देखिए लेकिन अगर हमारे आत्मिक आंखों को हम खोल दे, कानों को खोल दे, तो जो चीजें असंभव है वो संभव होते हुए हम देखेंगे। As Peter kept aside his expertise and moved on, और देखिए जैसे पतरस ने जो
जो है अपने अनुभवों को बाजू में रख दिया, let we also keep our own expertise aside and let's depend upon God. हम भी हमारे अनुभवों को जो है उसे बाजू में रख दे और परमेश्वर पर निर्भर होते हुए आगे बढ़े। So the first thing which we need to keep तो aside पहली बात जो हमें बाजू में रखना is है our excuses. वो हमारे बहाने हैं, The second thing which we need to keep aside, और दूसरा बात है what it is our expertise. और वो जो है हमारे अनुभव है। And the third thing, if you and me want to move on, if you and me want to experience the impossibles, और देखिए अगर तीसरा बात जो है जिसके वजह से हमें आगे बढ़ना है, the third and the most thing which we need to keep aside is our ego. और देखिए तीसरी बात जो है जो जिसे हमें बाजू में रखना है वो है हमारा अहम। Everybody has an ego. और देखिए हम सबके अंदर अहम है, We cannot say that we don't have an ego. और देखिए हम कोई नहीं कह सकता मेरे अंदर अहम नहीं है। However, it is very important for us to know if we want to move on and experience that goodness of God, we need to keep aside this ego and we need to follow what God says. और देखिए अगर हम सच में चाहते हैं हम आगे बढ़े, हम जो है परमेश्वर जो चाहता है उसे अनुभव करें, तो जरूरी है हमारे अहम जो है उसे बाजू में हम रख छोड़े। When Jesus said to Peter that let's go and launch out in the deep waters. और देखिए जब यीशु ने पतरस से कहा कि आओ हम जो है गहरे जल की ओर जाते हैं और वहां पर जाल को बिछाते हैं, Somewhere Peter's ego would have risen up. और देखिए हो सकता है वहां पर पतरस का अहम बीच में आया होगा, He would have said that, who is Jesus? और उसने कहा होगा यीशु तो कौन है, Why is this carpenter saying me to go out in the deep water? और ये सुतार का बेटा मुझे क्यों कहता है जा और वहां पर I'm a जाल डाल। fisherman, I know it all. और मैं जो है मछुआरा हूँ, मुझे सब कुछ पता है। Or is Jesus humiliating me by asking me to go in deep waters? या फिर परमेश्वर यीशु जो है मुझे जो है धिक्कार रहे हैं, बोल रहे हैं कि जा और वहां पर जाल डाल दे। But Peter kept aside his ego and he obeyed the word of God. लेकिन हम वचन में देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पतरस ने अपने हेम को साइड में रख दिया और उसने जो प्रभु कहते थे उसको मान लिया। Many people fall into their own egos. और देखिए बहुत सारे लोग जो है अपने खुद के अहम के कारण They गिर do not जाते हैं। experience the miracles of God because of the ego which is there in them. और देखिए बहुत बार जो है परमेश्वर के भलाई को अनुभव नहीं करते क्योंकि उनका अहम जो है वो बीच में आता Their है। ego stands and becomes a reason for their disobedience. और देखिए उनका अहम जो है वो बीच में अड़चन की नाई आता है और आज्ञा मानने के भांति वहां पर हो जाता Your है। ego would not help you, or your ego will not allow you to learn new things. और देखिए आपका अहम जो है आपको नई बातों को करने या सीखने नहीं देगा। Your ego will not allow you to change. और देखिए आपका अहम जो है आपको बदलने भी नहीं Your देगा। ego will always tell you that you are right. और आपका अहम आपको हमेशा कहेगा आप सही हो। And when your ego says all these things, it's very difficult for you to move और on. देखिए जब आपका अहम जो है आपसे ऐसे बातचीत करेगा तो आपका आगे बढ़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा। This morning I want to tell you that God has a plan for your और life. देखिए इस सवेरे के वक्त आपसे कह दूं परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपकी जिंदगी And के His लिए। word says that His plan is good, it's good for us. और देखिए उनका वचन कहता है उनकी कल्पनाएं जो हमारे लिए है वो उत्तम है। And He wants us to know His plans and pursue those plans. और वो चाहते हैं कि हम उनकी योजनाओं को जाने और उसका पीछा करें। But however, our ego can come between God's plan. लेकिन हमारा जो अहम है वो आ सकता है और एक अड़चन की तरह खड़ा हो सकता When है। you are controlled by your ego, और देखिए जब आपका अहम आप पर नियंत्रण करता you are है, not able to focus on the plan of God, but you are only focusing on your plans, what you want to do. और देखिए फिर आप जो है परमेश्वर जो आपके लिए करते हैं योजनाएं हैं उस पर नहीं, लेकिन आपकी खुद के योजनाओं पर आप ध्यान देते हैं। This morning we need to keep that ego aside. और देखिए इस सवेरे के वक्त जरूरी है कि हमारे अहम को हम साइड में We need रखें to focus on the plan of God, on the will of God. और हम जो है परमेश्वर पर उनकी इच्छाओं पर हम ध्यान दें। That day when Jesus asked Peter
to go out and launch in the deep और waters. देखिए उस दिन जब परमेश्वर ने कहा कि जा और जाकर जो है गहरे में वहां पर जाल डाल दे, God had planned something in Peter's life. और देखिए परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य था पतरस की जिंदगी God के लिए। wanted Peter to know who Jesus is. और परमेश्वर चाहते थे कि वो जान ले, पतरस जान ले यीशु कौन है। He wanted him to know that he is the Lord, he is the Messiah, he is the Savior. और देखिए यीशु चाहते थे, परमेश्वर चाहते थे कि वो पतरस जान ले कि यीशु ही उद्धार करता है, वो ही मसीहा है। But that day, if his ego would have come between that, लेकिन अगर उस दिन अगर पतरस का अहम जो है उसके बीच में आता, he wouldn't have become a disciple of Jesus और Christ. देखिए फिर वहां पर वो यीशु का शिष्य नहीं बन पाता। This morning there is a plan in your life. और देखिए इस सवेरे के वक्त आपकी जिंदगी के लिए भी Something प्रभु which का is something योजना very है। special which God has kept for you. बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष आपके लिए रखा है। But our ego can come between those plans of God. लेकिन हमारा अहम जो है परमेश्वर की योजनाओं के बीच में अड़चन आ सकता So है। it's very important for us that we keep aside our ego and we follow the will of God. We do as per God says. और इसलिए जरूरी है हमारे अहम को साइड में रखते हुए जो प्रभु कहते हैं उनके इच्छा के अनुसार हम करें। In the words of Peter, it says, "Nevertheless, at your word, I will let down the net." और देखिए यहाँ पर वचन कहता है, पतरस कहता है, तो भी तेरे कहने के कारण मैं जाल डालूंगा। It shows that Peter honored Jesus और Christ. देखिए ये बताता है कि पतरस जो है परमेश्वर का आदर करता He है, honored the plans of Jesus. और जो यीशु का उद्देश्य उसके जिंदगी के लिए था उसका आदर वो करता And he है। kept aside his ego and he moved on to catch that great fish, और get देखिए- great catch. और देखिए वहां पर जो है अपने अहम को उसको साइड में रखते हुए वो आगे बढ़ते हुए वहां पर बड़ी उस मछलियों को पकड़ने वो चाहता This है। morning, if you and me want to experience that big catch in our life, और अगर आज सवेरे के वक्त आप और मैं चाहते हैं वो बड़ा सा जो है चीजों को हम अनुभव let's करें, keep aside every ego which we have in us. जरूरी है हमारे अंदर जो भी अहम है उसको बाजू में And रखें, let's follow what God says. और हम उसका अनुसरण करें जो प्रभु चाहते हैं। So the first thing is that we need to keep aside what we need to keep aside? और क्या हमें रखना है बाजू में? Our excuses. हमारे बहाने। Second thing we need to keep aside is our expertise. और दूसरा जो है हमारे अनुभव। And third thing, very important, we need to keep aside is our ego. और तीसरा आखिरी बात जो है हमारे अहम को हमें साइड में रखना है। Peter did an act of faith and he was richly blessed और देखिए and he was richly rewarded. और देखिए पतरस ने यहाँ पर विश्वास का कार्य किया और वहाँ पर उसने बहुत बड़ा बख्शीश प्रभु से पाया। This morning, if you are ready to keep aside all these things, और अगर इस सवेरे के वक्त आप तैयार हैं इन सारी बातों को साइड and में if रखने you are के ready लिए, to richly reward it, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है परमेश्वर से बहुत बड़ा बख्शीश let's को all पाएं, rise on our feet. आइए हम खड़े हो जाते No, हैं। let's look ourselves. Let's check ourselves this morning. आइए अपने आप को हम जांचते हैं, अपने आप को देखते God हैं wants us to move और on. प्रभु चाहते हैं हम आगे की ओर बढ़े He wants us to go out and launch ourselves in the deep waters. और प्रभु चाहते हैं हम आगे बढ़ते हुए गहराई में जाल को डालें। But this morning, where are we standing today? लेकिन इस सवेरे के वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं? Are we approaching God with those excuses? क्या हम जो है यीशु के पास सारे बहानों को लेकर आते If you're हैं? somebody who has approached God with those excuses, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभु के सामने उन बहानों को this लाया morning है, tell God that, Lord, all these excuses, I keep it aside and I'm ready to move on. और इस सवेरे के वक्त आप प्रभु से कहे, प्रभु मैं सारे बहानों को साइड में रखते हुए मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ प्रभु। Oh, this morning tell the Lord that, Lord, I'm ready to unlearn, oh Lord और Jesus. प्रभु से कहे, प्रभु मैं तैयार हूँ प्रभु, जो सीखा है उसे I अनसीखा don't want to करने के bring लिए। my expertise, oh Lord. मैं मेरे अनुभव को तेरे सामने नहीं लाना चाहता But प्रभु। Lord, I want to depend upon you. प्रभु लेकिन मैं आप पर निर्भर होना चाहता हूँ। Lord, as your word says, oh Lord, I want to do it, oh Lord. प्रभु जैसे आपका वचन कहता है वैसे मैं करना चाहता It हूँ। may seem impossible. और हो सकता है मेरी परिस्थितियाँ असंभव सी It may लगती seem है difficult and challenging. और बहुत ही कठिन और चुनाव भरी लगती है। But this morning, I want to take a step of faith. लेकिन इस सवेरे के वक्त में विश्वास का एक पड़ाव को लेना चाहता Come हूँ। on, can we lift up our voices this morning? क्या अपने आवाज को आप उठा सकते
हैं Lift up your voices this morning. अपनी Keep आवाज aside को- all the ego which we have. और अपने आवाज को उठाते हुए सारे हेम को बाजू में And रख let's दें focus on the will of God. और हम जो है प्रभु के इच्छा पर ध्यान Let's do लगाएं as per the will of God. और जो प्रभु कहता है उस बातों को हम करें Oh, come on, can we lift up our voices? क्या अपने आवाज को उठाकर आप Lift प्रार्थना up your कर voices सकते this हैं morning. अपने आवाज को उठाएं Mold me and make me. This is what I pray. You are the potter. I am the clay. Mold me, God. Mold me and make me. This is what I pray from the within. Change my heart, oh God. Make it ever true. We leave our past behind, God. Change my heart, oh God. Yeah, may I be like you. Yes, Lord, this morning this is our prayer, oh Lord. प्रभु इस समय के वक्त हमारी ये प्रार्थना है That change our प्रभु heart, oh Lord, पिता Master. हमारे हृदयों को तू बदल Let प्रभु we be like you, Lord, प्रभु हम तेरे समान होने who पाए was ready to do God's will. और प्रभु जो तैयार थे आप परमेश्वर की इच्छा Who पूर्ण was ready, you were करने ready to do as per what God had planned. और जो परमेश्वर चाहते थे उस योजनाओं को पूरा करने Oh, this morning we come before you, Lord इस Jesus. समय के वक्त हम आपके पास आते This हैं morning, as your people are desiring to experience that new thing in their lives. और जैसे आपके लोग नए बातों का अनुभव करना चाहते हैं प्रभु God, I pray that, Lord, let that new encounter be their portion, oh Lord Jesus. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ नया मुख भेड़ उनका होने पाए Let they प्रभु experience your uniqueness, oh Lord. और आपके पिता नए बात को वो अनुभव करने Oh पाए God, help them so that they can forget their past, oh Lord. और जो भूतकाल का है उसे भूल जाए Lord, yes, Jesus, I pray, oh Lord, Master. और मैं प्रार्थना करता हूँ Lord, परमेश्वर as that day the Peter experienced that new thing in his life. और जैसे उस दिन पतरस ने नई बातों का अनुभव किया Let your प्रभु people experience that as in the name of Jesus, oh और Lord. आपके लोग भी परमेश्वर उस नई बात का अनुभव करने Oh, पाए they would not remain the same as they are, oh Lord. और जैसे है वैसे न रहे प्रभु But they will take a step of faith and they will move on, oh Lord Jesus. लेकिन एक विश्वास का छलांग को वो लेंगे और नए बातों को Oh, अनुभव I करेंगे pray that every plan of yours be fulfilled, oh Lord Jesus. पिता आपकी सारी योजनाएं उनके लिए पूरी होने पाए Lord, we give you all the glory and honor, सारा oh Lord. सराहना हम आपको देते हैं In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की Amen. Hallelujah. Amen. Can we give a Lord clap offering for Lord Jesus क्या हम Christ? परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं Amen. Are we blessed? क्या हम आशीषित हुए हैं It's time for tithes and offering. और अब समय है कि हम परमेश्वर को भेंट और दशमांश दें Okay, the word of God says in Hebrews 13:16, और वचन कहता है इब्रानी का किताब 13 अध्याय 16वां वाक्य do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. पर भलाई करना और उद्धारता न भूलना क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है So this morning, तो इस सवेरे के वक्त if you intend to please God, अगर आपकी ये इच्छा है कि आप प्रभु को प्रसन्न करें give it with a cheerful heart. और एक उद्धार मन से आप प्रभु को दे Also, और one more thing I would like to bring to your attention. और एक बात आपको ध्यान में आपके लाती हूँ As discussed last week, that our church rent is in arrears for last 3 months. और हमारी कलीसिया का भाड़ा जो है 3 महीने का बाकी है
So if you're willing, अगर आपकी इच्छा हो so please contribute towards that. और आप जो है भाड़े की तरफ जो है आप दे दीजिएगा। The ushers will come with white envelopes. If you're giving towards the rent, just write it on an envelope that it's towards the rent of the church. और देखिए सफेद एनवलप जो है अशर्स आपके सामने लाएंगे। अगर आपको देना है तो आप उस लिफाफे पे लिख सकते हैं चर्च के भाड़े के लिए। And as you give it, we believe that those sacrifices will be pleasing to God. और जैसे आप देंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के लिए वो ग्रहण योग्य होगा। You are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start when I was refusing. Your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. It's your love in my heart that's running over. Every day of my life I'll draw closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in His perfect love. Let's stretch forth our hands and pray towards this offering. आइए अपने हाथों को बढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। We thank you, Lord, for this offering that your people have sown with a cheerful heart. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस भेंट के लिए जो लोगों ने उद्धारता से दिया है। Lord, we believe that you have seen their hearts. पिता हम विश्वास करते हैं आपने उनके हृदयों को देखा है। And we sanctify this offering, Lord. पिता इस भेंट को हम आपके लहू से शुद्ध करते हैं And we ask that it may be used wisely for the expansion of your kingdom, Lord. और हम विनती करते हैं बुद्धिमानी से इसका इस्तेमाल होने पाए आपके राज के बढ़त के लिए। And as your people have given with a cheerful heart, और जैसे आपके लोगों ने उद्धारता से दिया है we believe that it will be pleasing to you and they will be blessed. और हम विश्वास करते हैं आपको ग्रहण योग्य होगा। We make this prayer in Jesus' name. हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And once again, I would like to encourage you all that please come forward and contribute towards the church rent. और आप सभी से फिर एक बार मैं विनती करता हूँ अगर आपको हो पाए तो आप कलीसिया के भाड़े की ओर थोड़ा सा दे It's दीजिए। your house. और ये आपका घर है And it's you, we as a family, we need to come together and we need to contribute. और देखिए ये आपका घर है और एक परिवार होने के नाते ये हमारा काम है कि हम जो है योगदान दें। So I would urge you, I would request you to contribute how much, whatever it is possible for you. और आपसे मैं विनती करता हूँ निवेदन करता हूँ जितना भी आपसे हो पाए आप जो है प्रभु की ओर दे दीजिए And God will surely bless you in the name of और Jesus. निश्चय ही प्रभु आपको आशीष देंगे यीशु के नाम से। And let's close our eyes. Let's do the final prayer this morning. और इस सवेरे के वक्त हम जो है आखिर की प्रार्थना करेंगे Before doing the final prayer, I just want to bring quick announcements. और आगे बढ़ने से पहले हम जो है सूचनाओं को लाए We have our weekly activities as it is. और जैसे हमारे सप्ताह भर के जो सभाएं है वैसे ही है We have our Bible study at 7:30 in the evening on Wednesdays. और बुधवार को 7:30 बजे हमारा बाइबल अध्ययन होता है We have fasting and prayer on Saturday 11 o'clock. और उपवास और प्रार्थना 11 बजे सवेरे शनिवार Youth service is 5:30 Saturday और evening. 5:30 बजे युवकों की सभा शनिवार Sunday school is at 8 o'clock in the और संडे evening. स्कूल जो है 8 बजे शनिवार को And 5 o'clock on Friday in the evening we have a teen service. और 3 सभा जो है 5 बजे शुक्रवार को होता As of है now, all these are on Zoom. और ये सारी सभाएं जो है जूम पर होती है Anybody who wants to join in these services, please connect with us so that we can give you
the login details. और अगर आप में से किसी को भी अगर ज्वाइन होना है तो हमसे आप संपर्क करें, हम आपको ये लॉगिन डिटेल्स दे And our देंगे। Sunday service would continue, remain, be on three services which we have. और हमारे इतवार की जो 3 सभा है जैसे है वैसे ही फिलहाल रहेगी। 8 o'clock in the morning. 8 बजे सवेरे Second service is at 9:30 to 10:30. और दूसरी सभा 9:30 से 10:30 Third service is at 11 o'clock to 12 o'clock. और तीसरी सभा 11 से 12। So I would request you to come and be blessed. आपसे विनती करता हूँ आप आइएगा और प्रभु से आशीष को Now पाइएगा। let's all close our eyes आइए अपने आंखों को मूंद लेते हैं as we look into God for our final prayer today. जैसे हम यीशु की ओर देखते हैं आखिर की प्रार्थना में। Father, we thank you, God. We bless your name, O Lord परमेश्वर Jesus. आपको धन्यवाद देते हैं, आपको We सराहते give you हैं। all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको We देते thank you, हैं। Lord, for this beautiful time, O Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु इस सुंदर दिन Lord, के this लिए। morning as you have spoken to us, O Lord, प्रभु जैसे आपने इस सवेरे के वक्त हमसे help बातें us so की that हैं। we can change ourselves. Help us so that we can correct ourselves, O Lord. प्रभु हम पर अनुग्रह करके अपने आप को बदल दे, अपने आप को हम सही कर दे। Help us so that we can move on, O Lord प्रभु Master, हमारी सहायता करके हम आगे बढ़ने so that पाए, we can experience the marvelous work, O Lord Jesus, in our ताकि lives. आपके अद्भुत कार्यों को अनुभव हम करने पाए। Father God, I give your people in your hand, O Lord. पिता आपके लोगों को हम आपके हाथों में Lord, as your सौंपते son and हैं। servant, Lord, I bless them with all the heavenly blessings, O प्रभु Lord. आपका बेटा आपका दास होने के नाते सारे स्वर्गीय आशीषों से मैं उनको उंडेल देता हूँ I प्रभु। pray that, Lord, as the heavenly blessings come, let all the material blessing and the physical blessings follow them, O Lord प्रभु Jesus. जैसे स्वर्गीय आशीषों से आप नवाजते हैं इतर आदि पिता और भी आशीषों से Lord, आपने let they never भरिएगा। lack anything, O Lord. प्रभु उनकी जिंदगी में कोई घटी न होने Father पाए। God, I pray that, Lord, let promotions be their portion, O Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रमोशंस उनके भाग होने In पाए। every area of their life, O Lord, let they experience your blessings, O Lord प्रभु Jesus. जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आपके आशीष को वो अनुभव करने As they पाए। experience those blessings, let they be a channel of blessing for others in the name of Jesus, O और Lord. जैसे वो आपके आशीषों का अनुभव करते हैं दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत वो बनने Let they पाए। experience a good health in their life. अच्छा स्वास्थ्य उनका अनुभव होने पाए। Lord, in प्रभु। their families, let their peace and joy be their portion, O Lord. उनके परिवारों में संबंधों में आपकी शांति आपका आनंद बना रहे। Lord, as they step into this new week, O Lord, जैसे वो नए सप्ताह में प्रवेश करते I हैं pray for your favor upon them, O Lord प्रभु Jesus. आपकी कृपा दृष्टि के लिए हम मांगते हैं। As your favor is upon them, let they find favor inside of men as well. और परमेश्वर जैसे आपकी कृपा दृष्टि को पाते हैं मनुष्य की भी कृपा दृष्टि में And let पाए। they experience something new, something unique in the name of Jesus, O और Lord. कोई कुछ नया कुछ पिता अद्भुत उनके जीवन में होने पाए। We give प्रभु you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Amen. Let's share the grace. आइए हम अनुग्रह को बांटते हैं। The grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह, the love of God, पिता का and the प्रेम, sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ now रहे and forevermore. अब और अनंत काल। Amen. आमेन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow us भलाई और करुणा हमारा अनुसरण all the करेगी days of our life, हमारे जीवन काल and we तक shall dwell in the house of God और हम परमेश्वर के धाम में निवास करेंगे forever and ever. अनंत काल Amen. के लिए। आमेन।